Hello everyone. Now let's see the most important event in the life cycle of an angiosperm. The most defining characteristic feature of any angiospermic plant. That process is double fertilization. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देख रहे हैं. इसमें हमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स, फ्लावर का स्ट्रक्चर, मेल फीमेल गैमेटोफाइट, मेल फीमेल स्ट्रक्चर्स, पॉलिनेशन, ये सब बीट हम देख चुके. अब हमें बस करना क्या है, गैमेट्स की फ्यूजन करवानी है और गैमेट्स की फ्यूजन के बाद उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके बारे में देखने का. तो ये जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की, इट इज सिंपली कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट इज नोन एज fertilization, but here angiosperms show double fertilization, not just a single fertilization take place here. The two fertilization processes will take place, hence the process is called double fertilization. कैसे होती है आइए देखते हैं. इसकी डिस्कवरी किया था नवा सचिन नाम का एक साइंटिस्ट थे. अपनी भाषा में याद रखो नवा सचिन, एक्चुअली नवाश्चिन उसका नाम है, प्रोनाउंसिएशन उसका आप देखें तो. The process of double fertilization was discovered by Navashin in two plants, Fritillaria and Lilium. Fritillaria और Lilium, ये CET में MCQ बहुत बार आके गए वाला है. Most important, the process of double fertilization was discovered by Navashin in Fritillaria and Lilium. ये दो प्लांट्स. What is double fertilization हम उसको बाद में डिफाइन करेंगे. थोड़ा सा ये प्रोसेस समझने के पहले मुझे तुम्हारे से कुछ तैयारी चाहिए. तैयारी मतलब क्या, आपको कुछ स्ट्रक्चर्स रिमाइंड करना पड़ेंगे. कौन से स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट. आपको दो चीजें लगेंगी. स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब कंटेनिंग टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स. याद है, दैट वाज योर मेल गैमेटोफाइट. और वैसे ही ओविल का स्ट्रक्चर अगर देखें तो पूरा डायग्रामेटिकली ही, अगर आपने ये डायग्राम के ऊपर से देखे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा. ओव्यूल is anatropous ovule consists of a stalk known as funicle. That stalk gives rise to coverings, and that coverings of ovule are called integuments. Coverings of ovule are called integuments. Inside the integuments there is a nutritious tissue, and this tissue is known as your nucellus. बराबर. और nucellus, one of the cell of nucellus gives rise to a 7-celled 8-nucleate female gametophyte. It is called your embryo sac. 7-celled 8-nucleate female gametophyte, that is embryo sac. 7-celled 8-nucleate क्यों बोलते हैं? Because there are 3 cells here, 3 cells here, and a central diploid cell is present here. This end is known as chalazal end. This is called opening is known as micropyle. Funicle, integuments. This is nucellus. Okay, this embryo sac, it consists of 3 upper cells known as antipodals. Antipodals. The central cell known as secondary nucleus, and the lower 3 cells, they will form egg apparatus consisting of 2 cells, a central egg cell and 2 synergids. So this is the structure of a typical anatropous ovule. It is anatropous ovule, the ovule in which funicle and micropyle they are present side by side. It is called anatropous ovule. अगर इसको इन्वर्ट कर दिए तुमने, so funicle will be present just beside chalaza, opposite हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा ये. So it will become orthotropous ovule. Okay, this is anatropous because funicle is just present near micro. ये सब स्ट्रक्चर अपन ने देखे थे. स्ट्रक्चर ऑफ TS ऑफ LS ऑफ anatropous ovule. मेगास्पोरेंजियम, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं इसको. ये पूरा याद आया क्या? मैं तैयारी करा रहा, रिवाइज करा रहा बस कि क्या क्या लगने वाला है अपने को. प्रोसेस बहुत छोटी है ये जरा सी, बस एक बार शुरू हो गई थी उसके बाद खत्म हो जाएगा. कुछ 5 पॉइंट की प्रोसेस है शॉर्टकट में, लेकिन पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए. ये स्ट्रक्चर सबको याद आया? नहीं आया होगा तो एक बार रिवाइज करो. ओके, अब मेल गैमेटोफाइट तुम्हारा तैयार हुआ था ऊपर जर्मिनेशन के टाइम पे. दिस इज स्टिग्मा,
यहाँ पे पोलन ग्रेन डिपॉजिट हुआ, सो दैट पोलन ग्रेन इज शेड or it sheds off at two celled stage. The two cells are upper, larger cell is known as vegetative cell, smaller cell is known as generative cell. This pollen grain comes here. Stigma will or pistil will try to identify it as its own pollen grain. We called it as pollen pistil interaction. The sugary substances interact here and the pollen grain is identified as own pollen grain. ठीक है, ये पोलन ग्रेन फिर जब यहाँ से इसमें वाटर इंसर्ट एब्जॉर्ब करेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्टिग्मा, इट विल स्वेल एंड रिहाइड्रेशन ऑफ दैट पोलन विल अकर, which leads to extension of intine and a growth of pollen tube will occur. पोलन ट्यूब फॉर्मेशन इसको बोले थे अपन ने. कैल्शियम, प्रोटॉन्स, क्लोराइड और पोटेशियम आयंस के साथ बोरॉन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता फॉर पोलन जर्मिनेशन. सब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में वाला है. फिर पीछे जो जनरेटिव सेल है, दैट जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू टू सेल्स दैट आर कॉल्ड योर टू हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. टू हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, दे विल आल्सो कम हियर, कम डाउन हियर. So these two are, what are these two? Two haploid non-motile male gametes. देखो एक एक शब्द के अंदर एमसीक्यू बनता है. मेल गैमेट्स आर मोटाइल और नॉन मोटाइल. दे आर नॉन मोटाइल. अगर वो मोटाइल रहते थे तो ट्यूब बीब की जरूरत ही नहीं रहती थी. Since they are non-motile, we need some structure that will carry that non-motile gametes up to the female gamete. तो यहाँ पे हम ट्यूब की मदद ले रहे. पोलन ट्यूब इज हेल्पिंग दैट नॉन-मोटाइल gametes to reach up to the female gamete. और इस तरीके से जब पोलन ट्यूब की मदद से ये अपन मेल गैमेट्स कैरी कर रहे हैं, सो वी कॉल्ड दिस प्रोसेस एज साइफोनोगैमी. कल अपन ने देखे थे साइफोनोगैमी इन प्रीवियस लेक्चर, लास्ट लेक्चर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन. व्हेन a pollen tube carries non-motile male gametes up to female gametes, when a pollen tube carries non-motile male gametes up to female gamete, so that carrying process or process of carrying is known as siphonogamy. Siphon means tube. So ये गैमी मतलब फ्यूजन के लिए लेकर जा रहे, मीटिंग कराने के लिए. So therefore this is called siphonogamy. Okay, अब ये ट्यूब बन गई थी. ट्यूब विल पास थ्रू द स्टाइल एंड इट विल देन रीच अप टू द ओव. यहां तक का सबको याद है, ध्यान में आ गया, क्या रिवीजन की जरूरत थी तुमको. अब आगे की प्रोसेस यहां से स्टार्ट होती है, डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस. हाउ दैट प्रोसेस विल स्टार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस पोलन ट्यूब विल रन अप टू दिस पॉइंट. इट हैज 3 पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज. इट कैन एंटर द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब कैन एंटर द ओव्यूल by 3 processes, either directly through the chalazal end, उसको बोलने का चालाजोगैमी. ये जो पोलन ट्यूब आ रही है ऐसी के ऐसे सीधा जा सकती है, यहां से स्ट्रेट, इसको ब्रेक करते हुए, इसको रप्चर करते हुए स्ट्रेट इंसर्ट होगी. इट मे एंटर डायरेक्टली थ्रू चलाजा. सो द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू चलाजा इज नोन एज चालाजोगैमी. Entry is also possible. Sometimes this pollen tube will not enter from this point. This pollen tube will come here. It will turn like this and it will enter from these integuments. Integuments को break करते हुए अंदर आएंगे. So it is called mesogamy. Mesogamy, entry through integuments. बीच में से कहीं तो भी meso part, बीच में से कहीं तो भी घुस रहे मेजल पार्ट में से. So it is called mesogamy. Entry of pollen tube through integuments. Entry through chalaza is chalazogamy. Entry through integuments is mesogamy. And entry through micropyle is called porogamy. Micropyle. What is micropyle? Small opening. Pore itself is opening. Pore. So अगर ये ट्यूब इस तरीके से घूम के आई इधर से और यहां से एंटर हो गई, सो दिस एंट्री थ्रू माइक्रोपाइल इज नोन एज पोरोगैमी. एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल इज कॉल्ड पोरोगैमी. देखो कितने सारे शब्द आए, सब शब्द एक एक लाइन के एक एक वन लाइन डेफिनेशन से आपको एमसीक्यू में बिल्कुल मिलेंगे. मैच द फॉलोइंग में मिलेगा.
तो इसके लिए तीनों एंट्रीज याद रखो. The polar tube can enter the oval through chalaza, it is called chalazogamy. Through integuments, it is called mesogamy, and through micropyle, it is called porogamy. So these are the three possible entries of pollen tube. This pollen tube ultimately enters through porogamy. ज्यादातर जो रहेगा वो पोरोगैमी से ही एंट्री होगी, क्योंकि एग सेल इज लोकेटेड, योर फीमेल गैमेट इज लोकेटेड नियर माइक्रोपाइलर एंड. तो अपने को मेल गैमेट्स को यहाँ पर लाना है, तो जनरली क्या होता है, एंट्री जो रहती है पोरोगैमी से ही होती है. ओके, फाइनली इधर से आएगा और पोलन ग्रेन आके इधर घुसे. अब यहाँ पे आने के बाद मैं इतना ही डायग्राम, अब बाकी का ऊपर का स्ट्रक्चर भूल जाओ, अपने को नीचे वाले पार्ट पे फोकस करने का है. तो देखो मैं उसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में, सिर्फ नीचे वाले पार्ट पे फोकस कर. दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, दीज आर 3 एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, this is egg cell and the 2 synergids, egg cell and the synergids. एनसीईआरटी में भी आपको ग्रीन कलर के डायग्राम्स दिया ले, तो वो डायग्राम्स देखो आप, वहां पे समझ आएगा. दिस इज द इंटेगुमेंट हियर, दिस इज द इंटेगुमेंट हियर. ओके, अब जो पोलन ट्यूब आई तुम्हारी, तो पोलन ट्यूब इधर से नीचे से इस तरीके से आके यहाँ पे आने को एंटर. पोलन ट्यूब विल कंटेन 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट्स. पोलन ट्यूब इज कंटेनिंग 2 हैप्लॉइड मेल. अब यहाँ पे एंट्री के टाइम पे देखो कितनी चीज होगी. जब ये एंट्री होंगी तो यहाँ तक पहुंचने के लिए पोलन ट्यूब को यहाँ तक ओवरी, अब ये पूरी ओवरी सराउंडिंग. ओके, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे दैट विल गाइड दी ओवरी, दैट विल गाइड दी पोलन ट्यूब टू एंटर दी माइक्रोपाइल, एंटर थ्रू माइक्रोपाइल. और यहाँ आने के बाद में जब ये पोलन ट्यूब, when this pollen tube will come here, so these 2 cells, these synergids will come in action. Synergids will come in action. These synergids release pollen tube attractants. क्या केमिकल वो रिलीज करेंगी? पोलन ट्यूब अट्रैक्टेंट. पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमिकल्स रिलीज करें, सच एज सम शुगरी पॉलीपेप्टाइड्स, some sugary polypeptides, अपने को उसके साइंटिफिक नेम्स की जरूरत नहीं, polypeptides, and some proteins, generally cysteine rich proteins. कौन से प्रोटीन्स? cysteine rich proteins. cysteine is the amino acid. okay, so cysteine rich proteins यहाँ पे, और शुगरी कुछ पॉलीपेप्टाइड वाला एक सिक्रीशन तैयार होगा. so that secretion will be released here by this synergid, and this pollen tube gets attracted towards that secretions, and hence it is called pollen tube attractant. The secretion of synergid is known as pollen tube attractant that attracts the pollen tube towards it. Okay, जब ये pollen tube यहाँ attract होंगी, again this movement is due to chemicals, so it is called chemotactic movement. कीमोटैक्टिक मूवमेंट, क्योंकि केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रही. ओके, सो केमिकल की वजह से मूवमेंट होने की वजह से कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब कैन बी सीन. जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ आएंगी तो सिनर्जिड्स के पास एक ऐसे फिंगर लाइक, दिस इज वन सिनर्जिड, अपन इमेजिन करते हैं इसको एक सिनर्जिड. सो दिस विल हैव प्लाज्मा लाइक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक एक्सटेंशन, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus. फिलीफॉर्म apparatus. जैसे कि एक बलून में हवा भरने के बाद तुम उसको बलून को रैप कर देते, नॉट कर देते या फिर कुछ कर, तो वो जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसका जिस तरीके से दिखता, वो बलून का जो माउथ था जिसमें से हवा भरे थे, वो कैसे फैला दिखता, उसी तरीके से इमेजिन करो कुछ फ्रॉक के जो कोई भी तुम्हारे कुछ डिजाइन रहते हैं उस तरीके से. सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट ऑन सिनर्जिड, दे आर कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus. फिली का मतलब रहता फिंगर, फिलीफॉर्म फिंगर लाइक apparatus, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन सिनर्जिड. तो ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करते हैं? सो द पोलन ट्यूब विल टच दिस फिलीफॉर्म apparatus and the pollen tube will start absorbing water from one of the synergid. अब ये जो 2 synergids है, ये एक है, ये एक है, दोनों में से एक पहले क्या होंगी? डीजनरेट हो जाएंगी. It will start to degenerate. Egg cell is here. This egg cell is here. The synergid will start to degenerate, and the degenerated amount, a cytoplasm, water
that will enter the pollen tube. पोलन ट्यूब में पानी भरने लगे. ओके, पानी अंदर आएगा. सो दैट वाटर विल एंटर इनटू पोलन ट्यूब, दैट लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ पोलन ट्यूब एंड इट विल बर्स्ट. पोलन ट्यूब में पानी भरने लगेगा. क्या होगा? पानी भरने से यहाँ पे फिर ये एक बलून जैसा स्ट्रक्चर तैयार होगा और फिर थीन होते जाएगा, इट विल बर्स्ट एंड इट विल रिलीज द 2 haploid male gametes into the embryo sac. अब पानी अंदर आ रहा तो इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. Entry of water within the structure is known as endoosmosis. So pollen tube will absorb water, it will by endoosmosis and it will swell and it will burst up into the embryo sac. That leads to release of 2 haploid non-motile male gametes into the embryo sac. Gametes पहुंच गए यहाँ तक. Now simply the 2 steps. देखो second step में ये, third step में release of gametes. ओके, गैमेट्स रिलीज हो गए, पहुंच गए यहां तक 2 गैमेट्स. नाउ द फोर्थ स्टेप इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन? अब फ्यूजन होगा तो देखो क्या होगा, कौन कितने किससे फ्यूज होगा वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. दैट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. अब अपने पास 2 मेल गैमेट्स है. मेल गैमेट नंबर 1, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट. वी हैव 2 मेल गैमेट्स. So that first male gamete will fuse. 2 जगह से फ्यूजन होंगी. First male gamete will fuse with the egg cell. वहीं पे पढ़ा लिया egg cell. So first male gamete will fuse with egg cell. That produces a zygote. Then the second male gamete will come here. It will fuse with this cell. It is called your secondary nucleus. And it leads to formation of primary endosperm nucleus. So 2 यहाँ पे फ्यूजन होंगी. First male gamete will fuse with egg cell and second male gamete will fuse with secondary nucleus to form primary endosperm nucleus. उसका full form primary endosperm nucleus. अब ploidy level देख लेते. Ploidy level मतलब gametes are always haploid, so this is haploid gamete, this is haploid gamete. Egg cell is also female gamete, so it is also haploid. अब haploid plus haploid, it will be diploid zygote. Zygote is always diploid here. Then this is male gamete, it is haploid. Secondary nucleus, ये haploid होता है कि diploid होता है? It is diploid because it is formed by the fusion of 2 polar nuclei. We have seen it in the development of female gametophyte. So secondary nucleus is diploid. Now fuse this to haploid plus diploid. क्या होगा? Triploid primary endosperm nucleus. The only triploid structure here is primary endosperm nucleus. और इसके बाद जो कुछ भी बनेगा वो भी triploid ही रहेगा फिर इससे बनने वाला. Okay? So thus, अब definitions देखो. This is the first fertilization and this is the second fertilization. 2 fertilization हुए क्या? Therefore it is called double fertilization. The first fertilization and second fertilization. First fertilization is also known as syngamy and second fertilization is also known as triple fusion. क्यों, क्या, कैसे देखो वाला सामने. And both of that 2 fertilization will collectively form the process of double fertilization. First fertilization is also known as syngamy. Second fertilization is also known as triple fusion. देखो मैं definition भी बोल रहा हूँ, दोनों की सबकी एक साथ मिला के बना दे रहा. Ultimate last process, release of gamete होने के बाद fertilizations और result of fertilization. What is double fertilization? One of the male gamete fuses with haploid male gamete fuses with haploid egg cell. Write down ploidy level as well in your definition. Haploid male gamete fuses with haploid egg cell to produce diploid zygote. It is called syngamy. Second male gamete fuses with diploid secondary nucleus to form triploid primary endosperm nucleus. Since here there is formation of it is a fusion of 3 nuclei. पहला न्यूक्लियस ये और ये 2 न्यूक्लियाई,
तो 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही, hence it is called triple fusion, also known as double fertilization, which results in formation of प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. सेल को नाम दिया है बस, और कुछ भी नहीं. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. zygote will lead to the result of syngamy is zygote will develop into embryo of seed, and result of triple fusion is primary endosperm nucleus that will develop into endosperm of seed. Zygote will develop into embryo of seed and primary endosperm nucleus will develop into endosperm of seed. The embryo will be therefore diploid because it is produced from diploid structure और ये माइटोसिस से डेवलप होता. Primary endosperm will develop into triploid endosperm because it also develops by mitosis. तो इसके लिए endosperm is always triploid. चाहे फिर तुमको अगर याद आ रहा होगा एल्यूरॉन लेयर मेज में रहती, कोकोनट वाटर, कोकोनट इडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, वो भी ट्रिपलेट था, अपन ने 11 में देखे थे. सो व्हाई? बिकॉज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स बाय माइटोसिस. सिंस इट इज ट्रिपलेट, इट ग्रोज इनटू ट्रिपलेट स्ट्रक्चर. जाइगोट ग्रोज बाय माइटोसिस. सिंस जाइगोट इज डिप्लॉइड, इट आल्सो डेवलप्स इनटू अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज एम्ब्रियो. तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, एक बार डबल फर्टिलाइजेशन हो गया कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस शुरू हो जाएंगे. प्लांट विल स्टार्ट टू दैट जाइगोट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो एंड पेन विल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, दैट इज द ट्रिपलेट एंडोस्पर्म ऑफ दैट सीड. ओके, एक बार फटाफट अगर रिवीजन दिए तो इसको शॉर्ट में अगर तुमको फिर से अगर लिखना है, क्वेश्चन आया, लॉन्ग आंसर भी आता, तो मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया था वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. लॉन्ग आंसर में आई डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ अ नीट लेबल डायग्राम एज वेल एज ऐड अ नोट ऑन सिग्निफिकेंस. विल सी सिग्निफिकेंस लेटर. तो अगर इसको समराइज कर दिए तो तुमको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? पहला पॉइंट लिखने का, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन इन फ्राइटिलारिया एंड डिलियम इन 1890. The process of double fertilization is the characteristic feature of angiosperms. Third point, when the pollen grain is incident, it falls on stigma, it germinates and it forms pollen tube containing 2 haploid male gametes. This pollen tube runs through the length of style and it reaches up to ovule. It can enter the ovule through 3 methods. Either through chalaza, it is called entry of pollen tube through chalaza is called chalazogamy, or through integuments, process is known as mesogamy, or through micropyle, the process is called porogamy. When the pollen tube reaches the micropyle, it comes in contact with synergids. Synergids release some chemicals that are rich in polypeptides and some cysteine rich proteins. That chemicals are called pollen tube attractants because they attract the pollen tube. Pollen tube touches the synergid and the filiform apparatus of the synergid will help in swelling or entry of water into the pollen tube by endosmosis, and the pollen tube swells up and it bursts, which leads to release of 2 haploid male gametes into the embryo sac. These two male gametes, one of the male gamete will fuse with egg cell that is present just near the embryo micropyle. So that fusion will result in formation of diploid zygote. Second male gamete will fuse with diploid secondary nucleus that will result in formation of a triploid structure known as triploid primary endosperm nucleus. First fertilization is also known as syngamy and second fertilization is also called triple fusion. Both these fertilization are collectively called double fertilization. This is the characteristic feature of only angiosperms. It is not found in gymnosperms, algae, bryophyte, pteridophyte. No other plant shows this process. It is the characteristic feature of only angiosperms. Syngamy नाम क्यों पड़ा? Syn मतलब same और गैमी मतलब फ्यूजन. तो सेम टाइप के सेल्स की फ्यूजन हो रही. देखो वाला, दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, बोथ आर गैमेटिक सेल्स. सो जब सेम टाइप के सेल्स की फ्यूजन होगी, इट इज कॉल्ड syngamy. एवरी टाइम फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मेल फीमेल गैमेट की फ्यूजन को सिंगैमी बोलेंगे. इवन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स में भी सिंगैमी रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. Why this is not syngamy? Because this is male gamete, but this is not a female gamete. It is a diploid cell. It is additional structure. So therefore it is not syngamy.
सिंगेमी मीन्स ओनली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब ये सब प्रोसेस होने के बाद तुमको आते इसका सिग्निफिकेंस, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही से स्टार्ट होता प्रोसेस का डबल फर्टिलाइजेशन का। सबसे पहली बात तो सिग्निफिकेंस में ये प्रोडक्ट्स लिख देने के तुमने, वी आर स्टडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। पहला सिग्निफिकेंस, नो वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट्स। देखो वाला कहीं पे वेस्टेज हो रहा क्या, नो वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट्स, both the male gametes are being utilized here for fertilization and hence we are getting at least some product from each male gamete. So no wastage of male gametes. दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पे, the zygote which is formed here, zygote which is formed, it is diploid, it leads to formation of embryo of the seed. तीसरा पॉइंट डाल दो तुम, pen primary endosperm nucleus, it leads to formation of endosperm of seed, it leads to formation of endosperm of seed। मतलब ये प्रोसेस उनको दो अलग अलग करके, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन सेकंड फर्टिलाइजेशन, एज अ पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस बोल के लिख सकते। द zygote which is formed in as a product of first fertilization forms the embryo of a seed and the pen forms the endosperm of a seed which is nutritious in function, it provides nourishment to the seed। बाद में इसके फंक्शंस अपने को देखने के, ये सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन देखेंगे। Then next one will be, it maintains ploidy, it maintains ploidy of species, diploid character of plant maintains is maintained by zygote। zygote diploid हो जाता तो फिर जो प्लांट बॉडी आने वाली सीड जो तैयार होगा वो भी डिप्लॉइड रहेगा, उससे आने वाले प्लांट बॉडी डिप्लॉइड रहेंगी, फिर पूरा प्लांट फ्लावर्स उसके डिप्लॉइड रहेंगे, लेकिन उसमें फिर एंथर में मियोसिस होके हैप्लॉइड गैमेट्स बने। तो इस तरीके से प्लॉइडी ऑफ प्लांट इज मेंटेन एज नॉर्मल, ये इसके अंदर चले। ठीक है, इसमें और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन एक और ये है, वन मोर सिग्निफिकेंस इज दैट डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स, इट इज नॉट सीन इन अदर प्लांट्स जैसे कि अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इट इज ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स के जो सीड रहते हैं दे कंटेन एंडोस्पर्म, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। हाँ, जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म रहता इट इज एक्चुअली नथिंग बट द मल्टीसेल्युलर हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, multicellular haploid female gametophyte itself acts as female gametophyte of gymnosperms, itself act as endosperm, वो खुद एंडोस्पर्म का काम करता, और उसकी वजह से जो एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म है इट इज हैप्लॉइड विथ वन एक्सेप्शन। आपको वो एक्सेप्शन ढूंढ के निकालना है, पाइनस है क्या, साइकस है क्या, जिनको है तो वो जिसमें भी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म किसमें मिलता है आपको ढूंढ के निकालना है। ओके, बट जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म है इट इज नथिंग बट द हैप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट, जबकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है दिस एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो ये अलग स्ट्रक्चर है, वहां पे वैसा अलग स्ट्रक्चर नहीं है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ विल एक्ट एज एंडोस्पर्म, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जाइगोट। ओके, तो इसके लिए जिम्नोस्पर्म्स में भी डबल फर्टिलाइजेशन नहीं दिखाई देता, डबल फर्टिलाइजेशन इज फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, हेंस इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, जैसे ये सब हो जाएगा इसमें फिर एंडोस जनरली ऐसा भी होता कि जाइगोट बनने के बाद ही एंडोस्पर्म तैयार होता, जाइगोट बनने के बाद ही सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता, क्योंकि क्या होगा अगर जाइगोट नहीं बना और पहले डबल फर्टिलाइज दूसरा प्रोसेस हो गया तो वेस्टेज ऑफ एंडोस्पर्म हो सकता, तो इसके लिए पहले जाइगोट बनता, जाइगोट बनने के बाद ही सेकेंड फर्टिलाइजेशन क्या कंप्लीट होता, सो दैट द वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज अवॉइडेड। तो ये इस तरीके कुछ एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे रहेंगे, बट द बेसिक 3-4 significance of this process are with no wastage of male gametes, first fertilization will result in formation of zygote,
that forms this embryo of seed. Second fertilization forms triplet pen that forms the endosperm of seed, which will provide nourishment at a very vigorous rate, higher activity, बहुत ज़्यादा रहेंगे. एंडोस्पर्म के बारे में हम बाद में बात करेंगे. Then next one will be the ploidy of plant body is maintained, and there is it is only the characteristic feature of only angiosperm. Yes, one more you can write here. It avoids the chances of polyembryony. It avoids the chances of polyembryony. मल्टीपल एम्ब्रियो नहीं बनते, एक जाइगोट से एक ही एम्ब्रियो बनता. मल्टीपल यहाँ पे एम्ब्रियोस तैयार नहीं होते. नहीं तो क्या होगा, इमेजिन करो अगर दूसरे वाले ने मेल गैमेट ने किसी और सेल के साथ फ्यूज होकर और एक जाइगोट बना दिया, तो दो जाइगोट से दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, मल्टीपल एम्ब्रियोस तैयार हो जाएंगे. तो एक ही सीड में मल्टीपल एम्ब्रियो तैयार होना उसको बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. विल सी इट लेटर. But this process of polyembryony is avoided due to the process of double fertilization, and the survival chances of plant will therefore increase. Plant ज़्यादा जिंदा रह सकता. So these are the significance of this process. Post fertilization changes will be studied in next lecture.